Okay. Yesterday we did. Okay. Good afternoon, everyone. We are here today for our English session on real life English phrases. So yesterday we did part 1. So we'll give a quick recap first. What we did yesterday. I think most of you remember the phrases which we covered yesterday. I'll just give a quick recap. The phrase which we covered yesterday was I'm losing it. मेरा सब्र टूट रहा है. Then buzz off. Remember? Buzz off. बस अब हो गया. Then who do you think you are? तुम क्या समझते हो खुद को? And we did sentences also for each and every one, every phrase. You remember? Yes, ma'am. Good. So next one was mind your words. सोच समझ कर बोलो. Mind your language. Mind your words. आप लोगों ने सुना होगा ये आपने phrase. Next was you went too far. तुमने हद पार कर ली. तुमने हद पार कर ली. The next one was you are killing the mood. तुम सबका मूड खराब कर रहे हो. जितने लोग हैं यहाँ पे तुम सबका मूड खराब कर रहे हो. Then was one second. I can't imagine. मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ. तुम जो ये हरकत कर रहे हो, I can't even imagine. The next one was we need to talk. We need to talk. We need to talk. हमें बात करने की जरूरत है. Then it was how could you be so careless? How could you be so careless? आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? So this we did yesterday. So here we are for the part 2 of our real life English phrases. So here I am going to share a screen with you. So we are here for real life English phrases part 2. The first phrase is you have got to be kidding me. You have got to be kidding me. तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? अगर ये फ्रेज आप कब यूज करेंगे? जब आप एकदम सरप्राइज कोई आपके साथ मजाक करे जो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करते. Then you can use this. Yourself. Students coming. Everyone, please mute yourself. Okay, the sentence we can use here is, are you really getting married? You have got to be kidding me. क्या तुम्हारी सच में शादी हो रही है? तुम जरूर मेरे साथ मजाक कर रहे हो. अगर आपकी कोई फ्रेंड हो या आपके साथ कोई हो जिनकी आप शादी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, कितनी जल्दी हो जाएगी. आप फुल्ली जैसे कोई बच्चे हैं या अर्ली मैरिज जैसे हो जाती है इन ग्रेजुएशन, ड्यूरिंग ग्रेजुएशन, तो आपको लगता है कि अरे इतनी जल्दी शादी. Are you really? You have got to. So this was the first phrase for our today. Please mute yourself. It is getting really disturbed. सब तरफ disturbance सुनाई दे रहा है. सब mute कर लीजिए और videos on कर लीजिए. Next phrase is cheer up. Cheer up. अपना मूड खराब मत करो, खुश हो जाओ. Cheer up. आप ये देख रहे हैं छोटी सी पेंगुइन है यहाँ पे, वो भी कितनी खुश है. एक छोटी सी बर्डी है, वो कितनी खुश है. Cheer up. Don't spoil your mood. Cheer up. आप किसी को भी अगर खुश करना चाहते हो, बोलें कि आप हंसें, खुश रहें, तो आप उनको ये फ्रेज यूज कर सकते हैं. Don't spoil your mood. Cheer up. अपना मूड खराब मत करो और खुश रहो. Okay? So the first phrase was you have got to be kidding me. तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? You have got to be kidding me. The next one was cheer up. अपना मूड खराब मत करो, खुश हो जाओ. Just keep remembering these phrases. I'll be asking you sentences to make sentence on these phrases. Okay? Or just keep on writing somewhere so that you can make sentence whenever I ask you to. Okay? So the next is
I can't thank you enough. I just can't thank you enough. जितना भी धन्यवाद किया जाए उतना कम है. मैं तुम्हारा जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है. ये हम फ्रेज कब यूज करेंगे? जब हमें किसी को थैंक्स बोलना हो और उन्होंने हमारे लिए आउट ऑफ प्लेस अपना कुछ काम ऐसा किया हो और हमें उनको धन्यवाद बोलना हो. फॉर एग्जाम्पल, इन द सेंटेंस व्हिच आई हैव मेड फॉर यू, I can't thank you enough for picking up my kids from school on time. मैं तुम्हारा इतना शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरे बच्चों को स्कूल से पिकअप किया और that too on time. At times क्या होता है, किसी की आप नहीं पहुंच पाए on time. This just an example. अगर आपको बच्चों को स्कूल से पिक करना है and you are not on time और किसी ने आपके लिए काम कर दिया आपसे इन्फॉर्म करके, so you will be very thankful to that person. So you just can use this phrase. I can't thank you enough. I can't thank you enough for picking up my kids from school on time. मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ. शुक्रगुजार हूँ. ओके? आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं मेरे साथ? Yes, ma'am. Good. Others, please switch on your videos who have switched off. And keep writing these phrases somewhere so that you can make sentences later whenever I ask you to make. Okay? The next is just between you and me. Just between you and me. So this is, ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहेगी. सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच. Okay? For example, just between you and me, Reena is not as qualified as for this job as she claims to be. ये इस जॉब के लिए रीना उतनी क्वालिफाइड नहीं है जितना वो समझती है खुद को. हम दो जने अगर बात कर रहे हैं अपने एक दूसरे के बीच में, दिस इज जनरली बिटवीन टू पर्सन. ये फ्रेज हम यूज करेंगे बिटवीन टू पर्सन. तो ये हम कब यूज करेंगे? अगर हमें किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करनी है. तो फॉर एग्जाम्पल, हमने जो यहाँ लिया है एग्जाम्पल सेंटेंस, उसमें क्या हो रहा है? दो लोग बात कर रहे हैं रीना के बारे में. जस्ट बिटवीन यू एंड मी, रीना इज नॉट एज क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब एज शी क्लेम्स टू बी. वो इतनी क्वालिफाइड ही नहीं है इस जॉब के लिए जितना वो खुद को समझती है, जितना बनती है वो. ओके? यू कैन यूज दिस फ्रेज बिटवीन यू एंड वन ऑफ योर फ्रेंड और कोलीग. द नेक्स्ट इज एज आई एक्सपेक्टेड. जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ. As I expected. जैसा मैंने सोचा था. जब आप किसी चीज से हैरान हो जाए कि अरे ये तो जैसे मैंने सोचा था ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया. For example, as I expected, I did get the promotion. Boss just does not like me. जैसा मुझे लगता था कि बॉस मुझसे खुश नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे प्रमोशन नहीं दिया. ओके? जैसा मेरे को मन में सोच रहा था वैसा ही हो गया. कई बार होता है ना हम लोगों के साथ, हम लोग जैसा मन में सोच रहे हैं वैसे ही हम लोग के साथ भी होने लगता है. तो दिस फ्रेज कैन बी यूज्ड देयर, एज आई एक्सपेक्टेड. फ्रेजेस यूज करने का आपका पर्पस क्या है? यू विल मेक योर सेंटेंसेस मोर स्मार्टर. यू विल मेक योर वोकैबुलरी मोर स्मार्टर और आपकी डेली कन्वर्सेशंस इंप्रूव होती जाएंगी. जितना आप इनको अपने लैंग्वेज में यूज करना की प्रैक्टिस में रखेंगे उतनी आपकी इंप्रूवमेंट आएगी. एंड दिस विल कम विद टाइम. आप सोचें कि आज अगर हम ये क्लास अटेंड करके गए एंड देन थिंग्स विल इम्प्रूव. थिंग्स विल डेफिनेटली इम्प्रूव, बट यू जस्ट हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग. ओके? आप लोग अपनी प्रैक्टिस पूरी रखिएगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू मेक यूज ऑफ दीज फ्रेजेस रेगुलरली. ओके? सो द नेक्स्ट इज it does not hurt to ask. It doesn't hurt to ask. पूछने में क्या जाता है? कई बार होता है ना, पूछने में क्या फर्क पड़ता है, चलो पूछ के देख लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ना ही तो मिल जाएगा. कई बार हम अपने पेरेंट्स से भी होता है ना कि मन में बात होती है, पूछ लेते हैं, पूछ के देखें, तो हम मन में ही सोचते रह जाते हैं. तो उस टाइम के फ्रेज के लिए क्या, उस टाइम पे हम क्या फ्रेज यूज कर सकते हैं? It doesn't hurt to ask. ज्यादा पूछने में क्या जाता है? The sentence here could be, do you think he would give me a better deal on this car?
हम दो लोग बात कर रहे हैं तो ये सेंटेंस आया है, डू यू थिंक ही वुड गिव मी अ बेटर डील ऑन दिस कार? वेल, इट डजंट हर्ट टू आस्क। क्या तुम्हें लगता है वो मुझे बेटर डील दे सकता है कार में? क्या तुम्हें ही लगता है? देन आई वुड से, वेल, इट डजंट हर्ट टू आस्क। एक बार पूछ के देख लो, क्या फर्क पड़ता है? भाई हम पूछ ही तो रहे हैं, वी आर नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग। इट डजंट हर्ट टू आस्क। Then you will use this phrase. Okay? आप लोगों ने नोट किया ये? Yes, ma'am. Okay, Ma'am. just be prepared with the sentences also. साथ साथ आप अपने एक sentence भी prepare करेंगे. I can ask any one of you to give me a sentence on this phrase. Okay? So that will give us a good practice कि हम कैसे उसको sentence में use करने की practice में आए. The next is, it's just one of those days. वह दिन जब सब कुछ गड़बड़ हो. It's just one of those days. कोई कोई दिन हम लोग के होते हैं ना कि उस दिन सब कुछ ही गड़बड़ सा ही लगता है, सब कुछ ठीक नहीं हो रहा, सब गड़बड़ सा ही होता जा रहा है, हम चाह रहे हैं ऐसा होना वैसा होना, नहीं होता. कुछ दिन होते हैं हम लोगों के, है ना? तो उन दिनों में ये वाला हम ये यूज कर सकते हैं उस टाइम के लिए, जैसे हम कुछ करने जा रहे हैं और हमारे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा. देन वी कैन यूज दिस फ्रेज ऑन दोज सिचुएशंस. सॉरी फॉर गेटिंग अपसेट विद यू, इट्स जस्ट वन ऑफ दोज डेज. मैं तुमसे माफी चाहता हूँ तुम पे गुस्सा होने के लिए. ये वही दिन है जब सब कुछ गड़बड़ होता है. किसी किसी दिन हम लोग का मूड भी खराब होता है, हमारे आसपास सिचुएशंस भी हमारे अकॉर्डिंग नहीं वर्क करती. तो ये सेंटेंस में हम उस टाइम यूज करेंगे जब हमारे साथ ऐसी सिचुएशन हो रही हो. ओके, तो ये हम यूज करेंगे, इट्स जस्ट वन ऑफ दोज डेज. ये दिन जब सब कुछ गड़बड़ हो. सो नेक्स्ट इज, आई स्क्रूड अप. आई स्क्रूड अप. मैंने सब गड़बड़ कर दिया. मैंने सब गड़बड़ कर दिया. The sentence could be, I can't believe that I screwed up the deal. I can't believe that I screwed up the deal. मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैंने ये डील बिल्कुल खराब कर दी. Because I screwed up. ये सब मेरी वजह से गलती हुई है. It's my mistake that I screwed up. I can't believe that I screwed up the deal. The next sentence could be, I was trying to help, but I screwed up again. I was trying to help, but I screwed up again. मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, बट लेकिन मैंने फिर गड़बड़ कर दी. कई बार होता है ऐसा कि बार बार आप चाहे अपना मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं अगले की, ट्राई करते हैं कि आप उसकी हेल्प कर सकें, बट लेकिन क्या होता है कई बार गड़बड़ पे गड़बड़ होती ही चली जाती है. So this phrase is for that time. I was trying to help, but I screwed up again. Okay? Have you noted? Okay, so we come ahead. I would better be going. I would better be going. मुझे अब निकलना चाहिए. मुझे अब निकलना चाहिए. The sentence could be, I am getting late. I would better be going. आप किसी पार्टी में गए हैं या आप ऑफिस में हैं और आपको लग रहा है कि आप लेट हो रहे हैं, you should move now. तो you can use this sentence like this. I am getting late. I would better be going. Because at times क्या होता है आप कहीं गए हैं and you have some other work also. साथ में दूसरा काम भी कुछ करना है. एक ही जगह पे कई बार बहुत लंबा टाइम लग जाता है. आपको समझ नहीं आता कि आप कैसे उसको बोलें जिस इंसान के साथ आप बैठे हैं, कि कैसे मैं उसको बोलूं कि उसको बुरा भी नहीं लगे and it will look smart also. So you can use this sentence, I am getting late. I would better be going, with a little smile on your face. स्माइल से क्या होगा, अगले को बुरा भी नहीं लगेगा कि आप उनको अवॉइड कर रहे हैं या आप उनको छोड़ के जा रहे हैं. And the sentence would look smarter also. Okay? I would better be going. मुझे अब निकलना चाहिए, लेट हो रहा है. नोट हो गया सबका? The next is, Juhi, you want to say something? Please speak.
Juhi, would you like to say something? No, ma'am. Okay, you just raise your hand. Okay, so the next phrase is let me know. Let me know. Let me know. मुझे बता देना. मुझे बता देना. For example, let me know if you are coming to the party. आप जैसे किसी एक कॉमन पार्टी में आपको और आपके फ्रेंड्स को जाना है और आप उनको कैसे बोलेंगे कि मुझे बता देना इफ यू आर कमिंग टू द पार्टी. अगर तुम भी आ रहे हो इस पार्टी में तो मुझे बता देना. So you will use this sentence, let me know if you are coming to the party. Let me know if you are coming to the party. मुझे भी बता देना अगर तुम लोग आ रहे हो तो. नहीं तो एट टाइम्स क्या होता है आप अकेले पहुंच गए और दूसरा इंसान नहीं टर्न अप हुआ फॉर सम और द अदर रीजन. तो दिस शोज कि आपने उनको मैसेज नहीं कन्वे किया कि आप बात नहीं हुई है या जो भी कुछ होता है इस तरह से. तो यू कैन यूज दिस फ्रेज लेट मी नो इफ यू आर कमिंग टू द पार्टी. ओके, आर पीपल कनेक्टेड विद मी? आर दे गेटिंग द पॉइंट्स? Yes, ma'am. Good. The last phrase for today would be put yourself in my shoes. Put yourself in my shoes. It is not literally. ये नहीं है कि आप किसी को बोलेंगे कि मेरे शूज में अपना पैर रखो. It is not the literal meaning. It is a phrase we are using. आप अपने को मेरी जगह रख कर देखो. आप अपने को मेरी जगह पे रख के देखो. कई बार क्या होता है हम कुछ ऐसी सिचुएशंस में फंस जाते हैं जो दूसरा हमारे को नहीं समझ पाता कि हम उसको क्या कहना चाह रहे हैं. तो उसको हम किस तरह से बोलेंगे? Put yourself in my shoes. आप अपने को मेरी जगह पर रख कर देखो. Then you will think, then you will realize what I am going through. मैं किस चीजों के दौरान गुजर रही हूँ. आप तब समझोगे when you will put yourself in my shoes. For example, the sentence here is, it's not that easy. Put yourself in my shoes. सब कुछ इतना आसान नहीं होता जब तक कि आप अपने आप को मेरी जगह पे नहीं रख के देखोगे. कई बार जैसे लगता है कि कोई एग्जाम आ रहा है, जैसे दो फ्रेंड्स ने तैयार किया, एक के लिए बहुत टफ है, एक के लिए इजी है. भाई डिफरेंस सबके होता है हम लोगों का. किसी को जल्दी समझ आ गया, किसी के लिए नहीं समझ आया. तो वो हम कहने के लिए क्या कह सकते हैं? It may be easy for you, but it is not easy for me. You need to put yourself in my shoes. तब आप समझोगे कि मेरे लिए कितना टफ है. कोई चीज किसी के लिए इजी होती है, किसी के लिए टफ होती है, सबके लिए बराबर नहीं होती. तो हम लोग इस तरह से फ्रेज यूज करेंगे, put yourself in my shoes. तब हम दूसरा इंसान समझेगा. ओके? I think everyone has noted down all the phrases which we have covered today. Yes, ma'am. Okay, तो समझ सबको आया है हम लोगों ने क्या क्या आज किया है? Yes, madam. Yes, ma'am. Okay, so we'll start with the sentence making first. Who will give us the sentence on? Let's start from the beginning. The first phrase was, "You have got to be kidding me." Who will give us the phrase today? You have got to be kidding me. Who is ready with the phrase? Who is ready with the sentence? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? कोई भी जना एक बताइए. Kanchan, are you ready with the sentence? Unmute yourself. बताइए. आवाज नहीं आ रही कंचन आपकी. थोड़ा और जोर से बोलिए. आवाज नहीं आ रही है. जया, आर यू रेडी विद द सेंटेंस? जया, अनम्यूट करिए. नहीं. और कोई रेडी हो तो वो बताइए किसी भी फ्रेज के साथ. जो भी आपको फ्रेज के साथ सेंटेंस आपने प्रिपेयर किया वो बताइए. मैम मैं बताऊं? हाँ बताइए. मैम, you are telling me mental. You have got to be kidding me.
सॉरी, दोबारा बताइए। Ma'am, you have telling me mad. You have got to be kidding me. यू हैव टेलिंग मी मैड। नहीं, सेंटेंस में आप बोलना क्या चाह रहे हैं वो बताइए पहले आप हिंदी में। तो आपने बोला है ना इसी के ऊपर बताना है ना, मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? हाँ, इसका ये भी क्या है कि तुम मुझसे पागल बोल रहे हो, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। अच्छा, यू थिंक आई एम मैड, यू गॉट टू बी किडिंग मी। यू थिंक आई एम मैड, यू गॉट टू बी किडिंग मी। ओके, यू विल नॉट से यू टेलिंग मी मैड। यू, हाँ जूही आप बताइए। Really, you are ready for this job. I think you have get to kidding me. दोबारा बोलिए जूही। Really, you are ready for this job. I think you have get to be kidding me. जूही आपका मीनिंग आप क्या बोलना चाह रहे हैं सेंटेंस के थ्रू? क्या तुम इस जॉब के लिए सच में प्रिपेयर हो या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? ओके, आप क्वेश्चन की तरह पूछ रहे हैं। तो आप इसमें बोलेंगे आर यू रियली प्रिपेयर्ड फॉर दिस जॉब और आर यू किडिंग विद मी। ओके, सो यू विल आस्क अ क्वेश्चन। इसमें आप क्वेश्चन की तरह पूछेंगे एंड योर एक्सप्रेशन शुड Are you ready? Are you ready for this job? और यू रियली किडिंग विद मी। Or you really kidding with me? क्या तुम इस जॉब के लिए तैयार हो या सिर्फ मजाक कर रहे हो? इट इज बेसिकली अ क्वेश्चन यू आर आस्किंग टू द अदर पर्सन। ओके, और कोई बताना चाहेगा कोई और सेंटेंस? हाँ दीक्षा आप बताइए, अनम्यूट करिए। I'm screwed up पे, I screwed up पे। I want to do something for you, special for you, but I screwed up. वेरी नाइस, वेरी परफेक्ट, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है, कोई मिस्टेक नहीं है। इट्स वेरी गुड दीक्षा, कीप इट अप। एनीबडी एल्स? Thank you, ma'am. एनीबडी एल्स? आई थिंक बच्चे लीव कर रहे हैं मीटिंग इसी वजह से कि उनको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इट इज बेसिकली आपकी थोड़ी हिचक खुले बोलने की। यहाँ पे हम लोग इसलिए हैं कि जिससे आप लोग की हिचक खुले बोलने की। स्पोकन इंग्लिश बेसिकली होती किस लिए कि हम बोलने की प्रैक्टिस करें। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी हमारी हिचक खुलती जाएगी और जो आपकी मिस्टेक्स आती हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आती हैं, वो हम यहाँ पे ठीक कर रहे हैं आपके लिए। तो बेसिकली हम स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में क्यों आ रहे हैं? अपने अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। ओके, और कोई कुछ बताना चाहेगा? हाँ बताइए, बताइए। Put yourself in my shoes. अच्छा, Shruti is also saying something. Diksha is also. Shruti, you just first give us the sentence. Put yourself in my shoes का. हाँ बताइए। Put yourself in my shoes. It was very complicated situation for me. So you will first use the sentence like it was a very complicated situation for me. Then you will put yourself in. It was a very complicated situation for me. If you put yourself in my shoes. उसमें आप Okay, ma'am. phrase use नहीं करेंगे, आप पहले sentence बनाएंगे, then you will use the phrase in the end. Yes. Okay? Very nice, Shruti. Very nice. Okay, ma'am. क्या आप? Thank you, ma'am. Ma'am, I could better be going पे। बताइए। I think there is some problem, so I could better be going. I think there is some problem. I could better be going. Very good. Yes, ma'am. Very good. Very good. Okay, very nice. बहुत अच्छा रहा। इस तरह से आप जितना बोलेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। स्मृति, are you ready with any sentence? Unmute yourself. Yes, ma'am. As I expected, I got admission in Agra College. Very good. Very good. जैसा मैंने सोचा था मुझे आगरा कॉलेज में एडमिशन मिल गया। Very good. Anybody else?
और कोई कुछ है सेंटेंस किसी पे? वंशिका आप कुछ बताएंगे? चलिए एनीवेज बहुत अच्छा रहा आप लोगों के साथ. Ma'am, it doesn't hurt to ask for help. सॉरी किसने बोला है अभी? Ma'am, to ask for help. हाँ बताइए. आवाज नहीं आ रही है. आप लोग चैट पे टाइप कर दीजिए. आई विल रीड दैट. Ma'am, may I? आप बताइए दीक्षा. As I expected, I become pediatric. I am a pediatric now as I expected. जैसा मैंने सोचा था मैं pediatric बन गई हूँ. अब आप प्रेजेंट में है. मैं एक pediatric बन गई हूँ जैसा मैंने सोचा था. ठीक है, प्रेजेंट में हम लोग ये बोलेंगे. ओके, इट वाज वेरी नाइस. अच्छा लगा. प्रॉब्ली इसकी हम लोग एक थर्ड सेशन और लेंगे एंड आई विल इन्फॉर्म यू ऑन द ग्रुप्स किस दिन रखेंगे इसकी क्लास. पार्ट 3 फॉर रियल लाइफ इंग्लिश फ्रेजेस. मैं आपको क्लास प्लान करके ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगी. सो विल कीप अ थर्ड पार्ट आल्सो फॉर दिस. ओके, Okay, ma'am. so it was very nice meeting with you all again today. So see you soon. Okay, bye. Same here. Okay, Ma'am. bye.